الله الرحمن الرحيم. یہ مثلث کا مشقی سیٹ 3.4 کا پانچواں چھٹا اور ساتواں سوال اس میں رہے گا. تو مثلث کے خاریہ زاویہ کی خصوصیت کا بھی استعمال اس میں ہوگا. تو مثلث کی خاریہ زاویہ کی خصوصیت جو ہے ابھی یاد کر لو کہ مثلث کا خاریہ زاویہ جو ہوتا ہے مثلث کے ہر زاویے سے بڑا ہوتا ہے. اور مثلث کا خاریہ زاویہ تم لوگوں کو ایسا نیا لگتا ہوگا تو 3.1 جو تھی مشق نمبر اس میں جا کے دیکھ لو. وہاں پہ بہت اچھی طرح سے بتایا گیا کہ مثلث کا خاریہ زاویہ کیا ہے. اور مثلث کی بنیادی تصورات میں بنیادی معلومات میں ایک ویڈیو بنائے وہ بھی دیکھ لینا. مشقی سے 3.4 دیکھیں گے جس میں سے پہلا سوال ہے ثابت کیجیے کہ متساوی الاضلاع مثلث متساوی ساکن متساوی زاویہ مثلث ہوتا ہے. یہ ثابت کرنا ہے. ہم لوگوں کو ایک مثلث ہے متساوی الاضلاع مطلب یہ کہ ایسا مثلث جس کے تینوں اضلاع متماثل ہو وہ متساوی الاضلاع مثلث کہلاتا ہے. پتہ ہے ہم لوگوں کو ایسا مثلث جس کے تینوں اضلاع متماثل متساوی الاضلاع مثلث. ایسا مثلث جس کے دو اضلاع متماثل 3 ضلع تو ہوتے ہی ہے 2 اضلاع متماثل متساوی ساکن مثلث. اور تیسری شرط اور کیا ہو سکتی کہ جس کے اضلاع تینوں اضلاع متماثل نہ ہوں آپس میں مختلف ہو تو اس کو بولا جاتا ہے مختلف الاضلاع مثلث. تو پہلے سوال شکل بنا لیں گے. شکل اس طرح سے بن جائے گی کہ تینوں اضلاع متماثل ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس کو نامزد کر دیں گے. اس کو نامزد کر دیں گے. اور سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مثلث جو ہے متساوی الاضلاع مثلث ہے جس کے تینوں اضلاع متماثل ہیں. تینوں اضلاع متماثل ہیں تو نشان لگا لیتے تینوں اضلاع پر متماثل دکھا دیتے. یہ دکھا دیتا ہوں متماثل یہ تینوں اضلاع متماثل ہے. یہ تینوں اضلاع متماثل ٹھیک ہے. اور اس کو نامزد کر دیتا ہوں تو نام دے دیتا ہوں یہاں پر یہ راس اے ہے یہ راس بی ہے اور یہ راس سی ہے. اب ہم لوگوں کو دیا ہوا جو ہے کیا دیا ہوا ہے سوال میں کہ متساوی الاضلاع مثلث ہے. تو پہلی اسٹیپ لکھیں گے حل کریں گے جب تو جو دیا ہوا رہے گا وہی لکھیں گے. پہلے کیا دیا ہوا ہے کہ مثلث اے بی سی متساوی الاضلاع مثلث ہے. لیکن ہم لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ متساوی زاویہ مثلث اور متساوی الاضلاع مثلث میں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اضلاع ہے اور یہ زاویہ ہے. مطلب یہ تینوں اضلاع متماثل دیے ہوئے ہیں ثابت کرنا ہے کہ تینوں زاویہ متماثل. تو ایک بات یاد رکھ لینا نالج کے حساب سے کہ متساوی الاضلاع مثلث میں ہر ایک زاویہ کی پیمائش 60 درجہ ہوتی ہے. اور یہ بھی خصوصیت تم لوگ کو پتا ہے کہ مثلث کے تینوں زاویے کی پیمائش کا مجموع 180 ہوتا ہے. زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے آگے چلتے ثابت کرنا ہے ہم لوگوں کو. ثابت کیا کرنا ہے کہ مثلث اے بی سی متساوی زاویہ مثلث ہے. ثابت کرنا ہے مثلث اے بی سی متساوی زاویہ مثلث ہے. یہ ثابت کرنا ہے. اب ہم لوگ نے کیا کر لیا ثابت جو کرنا ہے اس کو لکھیں گے بعد میں جو جواب آئے گا وہی لکھ لیں گے. ثابت کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک اسٹیپ آئے گی کہ مثلث اے بی سی متساوی زاویہ مثلث ہے. یہ ثابت کرنا ہے. ثبوت لکھنا شروع کرے کہ دیا ہوا ہے کہ مثلث اے بی سی متساوی الاضلاع مثلث ہے. مطلب اس کے کوئی بھی 2 اضلاع متماثل ہو سکتے ہیں ہم لوگ لے سکتے ہیں ایسا. تو اس لیے قطع اے بی متماثل قطع بی سی مطلب یہ تو دیا ہوا ہے. یہ جو ہے دیا ہوا ہے ہم لوگوں کو. اس لیے جب مثلث کے 2 اضلاع متماثل ہوں یہ اس کی وجہ تو لکھے کہ بھئی اے بی متماثل بی سی ہے. اس کی وجہ لکھ لیا ہم لوگ یہاں پہ کہ متساوی الاضلاع مثلث کے اضلاع ہیں. اور جب کسی مثلث کے 2 اضلاع متماثل ہوں تو متساوی ساکن مثلث ہوتا ہے. یہ بھی پتہ ہے. اس لیے زاویہ اے سی بی. اب ذرا یہاں پہ ٹیکنکس دیکھ لو کہ اگر ہم لوگوں کو
अगर हम लोगों को ना जाविया बताना रहा, जिला दिया रहा, जरा देखो यहाँ पे जिला क्या है, ए बी, जिला क्या है, ए बी मुतमासिल जिला बी सी, और ए बी सी में से मुसल्लस ए बी सी है तो जाविया क्या हो जाएगा, इसमें ए बी है सी नहीं है तो जाविया क्या हो जाएगा, ए बी के मुकाबिल का जाविया क्या हो जाएगा, ए सी बी। याद रख लो ये टेक्निक। और इसका क्या हो जाएगा, बी ए सी। ठीक है, अब जो है इसको मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत तो नहीं, सिर्फ समझने के लिए, याद करने के लिए, याद दहानी के लिए ये बताया था। और अब इसकी खुसूसियत क्या लिखेंगे कि जब किसी मुसल्लस के दो अज़ला मुतमासिल हों तो उसके कायदे पर के जाविये भी मुतमासिल होते हैं, उसके मुकाबिल के जाविये भी मुतमासिल होते हैं, तो वो खुसूसियत कहलाती मुतसावी साकाइन मुसल्लस के मसले के रूप से, मुतसावी साकाइन मुसल्लस के मसले के रूप से। अब यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं, ए बी मुतमासिल कता ए बी मुतमासिल कता ए सी, ये भी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के अज़ला है, और मुतसावी साकाइन मुसल्लस के मसले के रूप से फिर से दो जाविये इसके मुकाबिल के जाविये जो रहेंगे वो मुतमासिल हो जाएंगे, जाविया ए सी बी मुतमासिल जाविया ए बी सी। बयान 1 और 2 से ए सी बी और ए सी बी जो 2 मरतबा आया हुआ है तो उसको 1 मरतबा हम लोग लिखेंगे, इसलिए एक जाविया ए सी बी मुतमासिल ए बी ए सी मुतमासिल ए बी सी, तीनों जाविये मुतमासिल हो जाएंगे बयान 1 और 2 से। बयान 1 और 2 से तीनों अज़ला मुतमासिल, तीनों जाविये मुतमासिल, इसलिए तीनों जाविये मुतमासिल हैं, इसलिए मुसल्लस एबीसी जो रहेगा क्या रहेगा, मुतसावी जाविया मुसल्लस रहेगा। और यही साबित करना है तो हम लोग को यहाँ लिखना है, साबित क्या करना है कि एबीसी जो है मुतसावी जाविया मुसल्लस है, एबीसी मुतसावी जाविया मुसल्लस है, ये साबित करने का था हम लोगों को। याद रखना सवाल किस तरह से इसको हल करेंगे। छठा सवाल है, मुसल्लस एबीसी में जाविया बीएसी का नासिब जिला बीसी पर उमूद हो तो साबित कीजिए मुसल्लस एबीसी मुतसावी साकाइन मुसल्लस है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक मुसल्लस बनाना पड़ेगा और उस मुसल्लस में बीएसी का नासिफ लेना है, मुसल्लस में बीएसी का नासिफ। तो मैं ये मुसल्लस बना लिया और इसको नामजद कर देता हूँ, नामजद कर देता हूँ, ये नामजद कर दिया। अब ये यहाँ पर जो है बीएसी तो यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ ए रहेगा, क्योंकि एडी जो है वो नासिफ है, एडी नासिफ है, नासिफ की वजह से ये दोनों जाविये जो रहेंगे वो मुतमासिल हो जाएंगे। पता है हम लोगों को खुसूसियत कि नासिफ जो है जाविये की तनसीफ करता है, जाविये को दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम कर देता है, और यहाँ पर जो है ये 90 दर्जे का जाविया है, उमूद है, इसलिए क्योंकि लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि उमूद है। उमूद की वजह से आगे जब इसको हम लोग हल करेंगे तो दो मुसल्लस ले लेंगे, दो मुसल्लस कौन से दो मुसल्लस ले लेंगे, लेकिन दो मुसल्लस ले लेंगे, यहाँ तो दो मुसल्लस बन ही गए ना। एक मुसल्लस दिखता है क्या, नाम पर कॉपी किताब लेके बैठो, कॉपी किताब लेकर बैठना और उसको रफ लिखते रहना, जो बातें बताई जाएगी, और बाद में तुम लोग टैली कर लेना कि भाई तुम लोग कहाँ कहाँ पे चूक जाते हो। ये मुसल्लस हम लोग लिखना शुरू करेंगे, मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस ए सी डी में ये दो मुसल्लस दिखते हैं ना हम लोगों को। इसमें होता क्या है कि ये जाविया है, ये जाविया मुतमासिल, एक मुसल्लस का ये जाविया मुतमासिल, एक मुसल्लस का ये जाविया मुतमासिल, और एडी जो है मुश्तरिक है और दोनों तरफ 90-90 का है। ये तो एडीसी एडीबी और एडीसी जो है हर एक की पैमाइश 90 है, या हर एक कायमा लिख सकते हो, या हर एक की पैमाइश 90 दर्जा है। इसलिए ये आजमाइश कौन सी आजमाइश के बिना पर मुतमासिल हो जाएगा, इसकी समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा रफ मुसल्लस बना लेते हैं हम लोग, समझने के लिए कि कौन सी आजमाइश होगी। एक तो ये से रफ मुसल्लस बना लिए, ये इसको यकसा निशाना से दिखा दिए, ये एक जाविया हो गया, और दूसरा जाविया जो है ये दूसरा जाविया हो गया, यहाँ पर दूसरा जाविया, और ये जिला। इसको पढ़ के देखो तो क्या आएगा, इसको पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि क्या जवाब आएगा। इसका जवाब आएगा जा जिल जा आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो जाएंगे। दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो जाएंगे जब, तो आगे का हम लोग को समझ में आता ही है कि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरिया अज़ला लिख देंगे और प्रूफ हो जाएगा। आगे का शुरू करेंगे,
शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे मुसल्लस ABD और मुसल्लस ADC में, मुसल्लस ABD और मुसल्लस ADC में कौन से दो जाविये मुतमासिल हैं वो लिख लेंगे, जो कि दिया हुआ है हम लोग को, जाविया BAD मुतमासिल जाविया CAD। इसकी वजह लिखेंगे, इसकी वजह क्या आएगी, क्या आएगी वजह, इसकी वजह आएगी कि वो AD जो है वो नासिफ है, नासिफ की खुसूसियत से लिख सकते हो इसको। क्या वजह लिख सकते हो इसके तुम लोग, BAD मुतमासिल CAD नासिफ की खुसूसियत से लिख लेंगे उसको। ये दिया हुआ तो है, लेकिन वजह भी तुम लोग लिख सकते हो। क्या, यही जो वजह लिख देना कि नासिफ की खुसूसियत से वो बड़ा जाविया BAC जो है दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम हो गया, एक तो है BAD जाविया BAD और एक जो है जाविया CAD। आगे कता AD और कता AD मुतमासिल है, क्यों मुतमासिल है वो तो समझ में आता है कि मुश्तरिक है। कता AD मुतमासिल कता AD, वजह उसकी लिखे मुश्तरिक है, या मुश्तरिक जिला लिख सकते हो, मुश्तरिक लिख सकते हो। और बच क्या गया, बच गया ADB और ADC, ये हर एक कायमा जाविया ADB मुतमासिल जाविया ADC, उसकी वजह लिख लेंगे जाविया ADB मुतमासिल जाविया ADC, उसकी वजह लिखेंगे हर एक कायमा या हर एक की पैमाइश जो है 90 दर्जा, हर एक कायमा जाविया या हर एक की पैमाइश जो है 90 दर्जे की है। इसलिए मुसल्लस ADB और मुसल्लस ADC जा जिल जा आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे, दोनों मुसल्लस जा जिल जा आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होंगे। और मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीर अज़ला में हम लोग ले लेंगे AB मुतमासिल AC। एक बार मुसल्लस मुतमासिल हो गया, उसकी आजमाइश के लिए जितने अरकान 6 रुकन में से 6 जुज़्व में से 6 अरकान में से 3 अरकान इस्तेमाल हो जाएंगे, बाकी के अरकान को हम लोग बोलेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला, या कभी जाविये लिए तो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये। और उसका शॉर्ट फॉर्म बताया था CACT और CSCT, पिछली वीडियो में जाके वहां पे इसकी तफसील से तुम लोग देख लेना उसको। तो ये सब बातें जो है, एक बेनिफिट इसका ये भी है कि भाई पिछला जो है तुम लोग रिमाइंड रिवाइज कर सकते हो पीछे से जाके, एक सिर्फ यही एक फायदा है, बाकी दूसरे तो कोई फायदे दिखते नहीं है ये वीडियो बना के पोस्ट करने में। तो ये भी मुतमासिल AC, उसकी वजह लिख लिया, क्या वजह लिख लिया, मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। इसलिए जब जिस मुसल्लस के दो अज़ला मुतमासिल हो तो वो मुसल्लस जो है वो कहलाएगा मुतसावी साकाइन मुसल्लस। मुसल्लस क्या कहलाएगा, जिस मुसल्लस के अज़ला मुतमासिल हो वो मुसल्लस कहलाएगा मुतसावी साकाइन मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस, अच्छा हा घेऊन जास्त आहे. आता आपलं नेहमी बोलतो होतं बरं का आपल्या